Vice Principal. He has published many papers, articles in national and international journals. He has got Best Paper Presentation Award, and he was awarded by Ayurved Patrika um, for Best Thought-Provoking Article. Dr. Sachin Utpat sir has been invited as a resource person in various seminars and institutes. I have given very brief introduction about him. As we are eager to attend his lecture on topic illustrative explanation of role of Raktamokshan in skin diseases, I request to Dr. Sachin Utpasar to present the sessions. Thank you, sir. Thank you, Ketki. Good afternoon, all the students, teachers, practitioners, and Vaidyas attending to today's beautifully organized webinar. First of all, I express my thanks as I have got opportunity to share the stage with one of the greatest and renowned personalities of Panchakarma, Dr. Surendra Vedapathik sir. Just he has delivered a beautiful lecture for us. Secondly, I also thank all the teachers who taught me when I was doing PG at Ayurved Seva Sangh, Ayurved Mahavidyalaya, as you have heard just before. All these people are architect of what I am today. And I also thank to all the dignitaries of Ayurved Seva Sangh, all the present teachers, Panchakarma department of Ayurved Seva Sangh, especially Dr. Savita Kulkarni madam. And last but not the least, Dr. Rajan Kulkarni sir, who was my guide when I was doing my PG, and Dr. Swanand Pandit sir, who taught me ABC of Panchakarma. Thank you again. So let's start today's session. My topic is illustrative explanation of role of Panchakarma in skin diseases. Just now I will share my screen to you. Yes. Illustrative explanation of role of Raktamokshan in skin diseases. We come across webinars every now and then, especially since this lockdown period, and many webinars on Panchakarma might have happened all around. जब हम रक्तमोक्षण और स्किन डिसीज के ऊपर सोचते हैं तो क्या अलग हम बोल सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा. रक्त दूष्टि कैसी होती है, रक्तमोक्षण के टाइप्स क्या है, सिरावेद है, प्रच्छान है, श्रृंग, जलोका, अलाबू एंड सो ऑन. I thought that my presentation should be some different. घर जाते समय ऐसा सब लोगों को लगेगा कि मैंने कुछ अलग सी चीजें आज देखी है या अलग सी चीजें आज समझी है, ऐसा मैंने सोचा और मेरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है. At the end of the presentation, you people will decide whether it was okay or not. So thanks again. Now I will start my session. शंखम चक्रम जलोकाम ददत मृतकटम चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यम शुकपरिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालाम भोदो जलांगम कटितट विलसच्चारु पीताम्बराढ्यम वंदे धनवंतरिंथम निखिल गदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम.
As I am presenting a very critical subject before you, so I want your good wishes. So wish me best luck. Thanks again. स्क्रीन के ऊपर एपोलॉजी देखने के बाद बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या चीज है, अभी लेक्चर शुरू भी नहीं हुआ और सर ने एपोलॉजी का स्क्रीन पे क्यों स्लाइड डाल दिया। जब हम किसी भी आयुर्वेद के सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बारे में दो प्रकार के विचार हो सकते हैं या दो तरह की बातें हो सकती है। कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के सूत्र एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिर्फ आयुर्वेद का ही सहारा लेना चाहिए या आयुर्वेद के कोटेशंस का ही सहारा लेना चाहिए। और एक चीज ऐसे भी है या एक मत प्रवाह ऐसा भी है कि अगर हम जो कंटेम्पररी साइंसेस है या मॉडर्न साइंसेस है उसमें कुछ रेफरेंसेस निकाल के अगर हमारे कोटेशंस के ऊपर या हमारे जो कुछ सूत्र है उनके एक्सप्लेनेशन के बैकग्राउंड में अगर वो प्रेजेंट कर दे तो अच्छा हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि अगर मॉडर्न साइंसेस के अगर कुछ रेफरेंस है उससे अगर हमारे कोटेशंस प्रूव हो जाते हैं या हमारे साइटेशंस प्रूव हो जाते हैं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो 12वीं के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पढ़ के बीएमएस को आते हैं। पर ये बात शायद किसी लोगों को अच्छी नहीं लग सकती। some of us or some people may disagree with this or dislike this, तो इसकी वजह से I apologize at the start of my lecture. Now I will begin here with today's lecture. What we will see today, some common factors in various skin diseases. जैसा हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि स्किन डिसीजेस में या रक्त प्रदोषज विकार में रक्त दृष्टि एक कॉमन थिंग होती है, तो वैसा एलोपैथी या मॉडर्न साइंस सोचता है क्या, कुछ कॉमन फैक्टर उसमें है क्या। रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड स्किन डिसीजेस, रोल ऑफ जलों का उच्चारण और लीच एप्लीकेशन इन स्किन डिसीजेस, रोल ऑफ सीरावेद इन स्किन डिसीजेस, इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन, दो केसेस में अंत में प्रेजेंट कर रहा हूं, एंड सम न्यू मेथड्स और टेक्निक्स इन टुडेज एरा। सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू स्किन डिसऑर्डर्स। ऐसा तो कोई क्लासिकल क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है, पर अगर हम स्किन डिसऑर्डर्स का या स्किन डिसीजेस का क्लासिफिकेशन करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। फंक्शनल, ऑर्गेनिक, इन्फेक्शियस एंड इंडस्ट्रियल डिसीजेस ऑफ स्किन। अगर उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाए तो फंक्शनल में एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, एक्नी, सोरियासिस, अल्सरेशन आ सकता है। ऑर्गेनिक डिसीजेस जो है उसमें जीरोडर्मा, ट्यूमर्स, मोल्स, ग्रैनुलोमा ये आते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है उसमें हर्पस, वॉर्ट्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीनिया ये सब आते हैं। और इंडस्ट्रियल डिसीजेस जो है उसमें मेटालिक डर्मेटाइटिस, कॉबलर्स डर्मेटाइटिस एटसेट्रा ये डिसीजेस में आते हैं। स्किन के जो डिफरेंट लेजन्स है वो क्या क्या होते हैं। मैक्यूल्स, that is different colors of the skin, papules, that is eruptions, nodules, that is bigger eruptions or tumors, vesicles, that is collection of fluids, pustules, seropurulent exudate, scarring and crusting, ulcers, scars, that is keloid and scleroderma। ये स्क्लेरोडर्मा जो वर्ड है वो ध्यान में रखे, उसके ऊपर आखिरी में एक मैं केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आयुर्वेद में रक्त प्रदोषज विकार जो है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार के ऊपर हो सकता है। रक्तस्राव प्रधान व्याधि, वैवर्ण प्रधान व्याधि, कंडुक प्रधान व्याधि, पाक प्रधान व्याधि, मंडल प्रधान व्याधि, वृद्धि प्रधान व्याधि, संताप अधिक्य और दुर्गंध प्रधान व्याधि। उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए। जैसा मॉडर्न साइंस में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वैसा ही हम आयुर्वेद के हिसाब से या उसके आधार के ऊपर भी ये क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन त्वचा एंड रक्त। इफ वी सी द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्किन, वी हैव द कोटेशंस फ्रॉम द वाग्भटा। वाग्भट डिस्क्राइब्ड द फॉर्मेशन ऑफ त्वचा ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रक्त धातु by its Dhatvagni in the fetus. After PAC or metabolic activity, proper metabolic activity, it dries up to form the tvacha, just like the deposition of
cream over the surface of the milk, boiled milk. जैसे दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है, वैसे हमारी स्किन जो रक्त धातु है उसके ऊपर उसकी धात्वाग्नि की प्रक्रिया होती है और उसके बाद ये स्किन फॉर्म हो जाती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। तो ये रक्त और त्वचा का जो संबंध है यही प्रस्थापित होता है, शुरू में ही प्रस्थापित होता है। मॉडर्न टर्म जो है स्किन के लिए, जो हमारी जो सप्त त्वचाएं दी है उसके बारे में अगर हम कुछ जानना चाहे तो आप सब जानते हैं अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, ये जो 7 हमारी सप्त त्वचा बताई गई है उसमें स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम या माल्पीजियन लेयर, पैपिलरी लेयर, ऐसा जो 7 लेयर्स आयुर्वेद एलोपैथी में भी बताए गए, मॉडर्न साइंस में भी बताए गए हैं, उसका हम कोरिलेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुष्ठ जो है या विसर्प है वो वेदिनी, ये जो त्वचा का लेयर रहता है उसमें ही ज्यादातर फॉर्म होता है, ऐसा हमारे आयुर्वेद का मानना है। सो नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ द टुडेज लेक्चर और दिस इंस्टेंस? It is important to find out the common connection between various skin diseases. आयुर्वेद में तो हमको पता है रक्त दुष्टि is common in all रक्त प्रदोषज विकार as the name suggests, but what about the skin disorders mentioned in modern sciences? तो इसके लिए हमको हिस्टोपैथोलॉजी थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कुछ स्लाइड भी उसकी यहाँ बनाई है। ये जो एक स्टडी हुआ है, कंपैरिजन ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस विथ हिस्टोपैथोलॉजी इन इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीजेस, अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ 455 केसेस, 455 केसेस के ऊपर इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और हिस्टोपैथोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्किन बायोप्सीज, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंस है ये उन्होंने देखा और देखने के बाद जो कुछ चीजें हैं उसका अगर हम वर्गीकरण करें तो ये जो एक्जिमा है या डर्मेटाइटिस है उसमें भी हमको ये वी कैन फाइंड दैट पैराकेराटोसिस एंड पेरीवेस्कुलर लिम्फोहिस्टोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, ये हमको उसमें पता चलता है, ये उसके स्लाइड से। सूरियासिस में अगर देखें तो डायलेटेड कैपिलरीज इन डर्मल पैपिली, पेरीवेस्कुलर लिम्फोहिस्टोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट उसमें भी आ जाते हैं, ये उसके स्लाइड से। या फिर लाइकन प्लानस है उसमें भी जो इंटरफेस डर्मेटाइटिस होता है। तो अगर ये हम सब देखें तो कहीं ना कहीं हर स्किन डिसीज में, जैसा आयुर्वेद बोलता है कि रक्त दुष्टि होती है, तो आधुनिक शास्त्र भी ऐसा ही बोलता है कि रक्त दुष्टि के कुछ हमको बेसिस वहां मिलते हैं। और इसके बारे में अगर हमको अधिक जानना है तो इंटरल्यूकिन्स के बारे में हमको जानना होगा। व्हाट आर दीज इंटरल्यूकिन्स? The interleukins are a group of cytokines, that is secreted proteins and signal molecules that were first seen to be expressed by white blood cells. And the function of the immune system, जो हमारी प्रतिकार शक्ति रहती है, depends in a large part on interleukins, and rare deficiencies of a number of them have been described, all featuring autoimmune diseases or immune deficiency. इसका मतलब यह है कि अगर हम इंटरल्यूकिन्स के बारे में पढ़े तो ये इंटरल्यूकिन्स और ये साइटोकाइंस, ये जो चीज है वो हमको इस सब स्किन डिसीज है उसमें कॉमन दिख सकती है। पर इंटरल्यूकिन्स के तो बहुत टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये जो कोविड-19 चल रहा है उसमें भी ये स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन्स फाइंड आउट किए गए हैं। तो हमको देखना है व्हाट इज इंटरल्यूकिन 10। इसके बारे में अगर हम पढ़े तो interleukin 10 is a key cytokine produced by a multitude of immune effector cells and possesses distinct regulatory effects on immune functioning in the skin. स्किन के बारे में अगर हम पढ़े या स्किन के जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है उसके बारे में अगर हम पढ़े तो सब डिसीजेस में एक कॉमन चीज आ जाती है, वो है इंटरल्यूकिन 10। There is a definitive role of interleukin 10 in the pathogenesis and potential treatment of skin diseases. अगर मैं ऐसा दावा नहीं कहता या करता कि इंटरल्यूकिन 10 हर एक स्किन डिसीज के लिए जरूरी है, पर अगर हम कोई कॉमन चीज सब स्किन डिसीजेस के बारे में अगर ढूंढना चाहे तो हमको मिल सकता है। इंटरल्यूकिन 10 is that factor which is common in almost many inflammatory skin diseases.
हमारी संविधा इसके बारे में क्या कहते हैं? रोल ऑफ रक्तमुक्षण इन वेरियस रक्त प्रदोषज विकार, रक्त दुष्टि और रक्तमुक्षण। ये जो कुछ रेफरेंसेस है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है अगर रक्त दुष्टि है तो उसके लिए रक्तमोक्षण करना चाहिए। और छर्दी वेग प्रतिघातात काले च अनवसेचनात्, उसके बाद चरक बोलते हैं शरत्काल स्वभावाच्च शोणितम संप्रदुष्यति। अगर हमने यथोचित काल में रक्त का मोक्षण नहीं किया तो रक्त दुष्ट हो सकता है। यही संबंध यहाँ प्रस्थापित होता है कि रक्त दुष्टि और रक्त मोक्षण इसका बहुत क्लोज रिलेशन है। उसके ऊपर जो टीका लिखी है उसमें भी ये बताया है, शोणितस्य दुष्टस्य यत् अवसेचनम कर्तव्यम तदानीम अनवसेचनात् अमोक्षात्। यानी रक्त दुष्टि और रक्त मोक्षण इनका परस्पर संबंध है। अगर हम यथोचित काल में या शरद ऋतु में रक्त मोक्षण नहीं करते तो रक्त दुष्टि होती है। इसका अलग मीनिंग ये है, अगर रक्त दुष्टि किसी भी वजह से होती है तो उसके लिए रक्त मोक्षण करना चाहिए। विसर्प के बारे में अगर हम पढ़े तो उसमें एक सूत्र ये आता है, रुधिरस्यावसेकम च तद ही अस्य आश्रय संज्ञितम। विसर्प का आश्रय क्या है? तो रक्त धातु है। और उसके बाद ये बोलते हैं तेन शोणित अवसेकार आश्रय छोदेन विसर्पोच्छेद। आश्रय का ही अगर नाश हुआ तो विसर्प कैसे टिक सकता है? तो विसर्प का आश्रय रक्त धातु है। अगर रक्त धातु का या दूषित रक्त का हम छेदन करते हैं तो विसर्प का भी छेदन होता है। कुष्ठ में भी हमको यही रेफरेंसेस मिलते हैं। ये तो वनस्पति का और कुष्ठ का एक कोरिलेशन सुश्रुत ने बताया है। त्वची काल प्रकर्षता, पहले त्वचा के ऊपर वो दिखता है और उसके बाद स्पर्शहानि स्वेदन त्वम ईशत कंडुश्च जायते वैवर्ण्य वृक्ष भावश्च कुष्ठे त्वची समाश्रिते। त्वचा यानी रस धातु को हम त्वचा बोलते हैं। जब क्रमेण धातु व्यापनोति नरस्य अप्रतिकारिणा, एक एक धातु में अंतर अंतर के बाद जो कृष्ण का प्रवेश हो जाता है उसमें ये हम देख सकते हैं कि अगर रस में वो है या त्वचा में है तो स्पर्श हानि है, स्वेदनत्वम, ईशत कंडु, ये हम सब देखते हैं। अगर वो रक्त में चला जाता है तो त्वक स्वापो, सुषुप्ति हो जाती है, रोमहर्ष, स्वेदस्य अभिप्रवर्तनम, कंडूर पूयकः चैव, इतने सब सिम्टम्स हमको दिखते हैं। यानी कुष्ठ का रस से या रक्त से बहुत क्लोज संबंध है। कुष्ठ ये रक्त प्रदोषज विकार है। रक्त प्रदोषज की जो बिगिनिंग है उसमें सूत्र में ये है, कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्तम असुरुग्धरा। कुष्ठ की चिकित्सा अगर देखे तो बार बार रक्त मोक्षण का रेफरेंस आता है, श्राव्यम रक्तम वत्सरे ही द्वि अल्पम, या उसके बाद भी निःसृते दुष्ट रक्ते। उसके बाद जो रेफरेंस आता है पुनः पुनः एव शोधनम शोणितस्य अवसेकयो, शोधन और शोणितस्यावसेचन जो है या रक्त मोक्षण है वो बार बार कृष्ण में करना पड़ता है। पक्षात पक्षात वमनम, ये जो लिखा है उसके बाद हर संवत्सर में 2 बार एटलीस्ट रक्त मोक्षण करना चाहिए, ऐसा संहिताकार बोलते हैं। कुष्ठ और विसर्प में भेद है, वो क्या है ये अगर हमको देखे या हम देखें तो उसमें भी ये हम वी हैव द कोटेशंस, विसर्पणशीलेन रक्त प्रदानेन च दोषेण विसर्प जन्म अन्यथा तु कुष्ठ जन्मेति व्याधि भेदोत्पत्ति। विसर्प में विसर्पणशील अगर रक्त प्रधान दोष है तो विसर्प हो जाता है, और वो दोष अगर विसर्पणशील नहीं है तो कुष्ठ हो जाता है। क्योंकि दोनों का जो दोष और दुष्य जो एक संग्रह है, द्रव्य संग्रह है, वो कॉमन है। सप्त को द्रव्य संग्रह दोनों में कॉमन है, विसर्प में भी है और कुष्ठ में भी है। पर विसर्प में वो रक्त प्रधानता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षण एकता, ऐसा विसर्प के बारे में कहा गया है। ऐसा कुछ रेफरेंस अगर हम ढूंढते हैं आधुनिक शास्त्र में कि क्या हम, जैसा आयुर्वेद बोलता है कि रक्त की शुद्धि के लिए रक्त मोक्षण करो, रक्त मोक्षण क्यों बताया गया है आयुर्वेद में? लीच के बारे में भी यही बताया गया है कि वो दुष्ट रक्त का सिर्फ अचूषण करती है। पर कंटेम्पररी साइंसेस या आधुनिक शास्त्र जो है, मॉडर्न साइंस जो है, वो भी ऐसा सोचता है क्या, ये भी देखना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन स्किन डिसीजेस, ये हम इस परिप्रेक्ष्य में आगे देखने वाले हैं। इसके लिए हमको एक और थेरेपी जाननी होगी, उसका नाम है साइटोसॉर्ब थेरेपी। उसका डिस्क्रिप्शन ये है, द साइटोसॉर्ब थेरेपी इज बेस्ड ऑन एन एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर दैट कैन इफेक्टिवली रिड्यूस एक्सेसिव लेवल्स ऑफ inflammatory mediators.
ये जो साइटोसॉर्ब थेरेपी है वो करीब 53 के ऊपर कंट्रीज में अभी उसका यूज चल रहा है। वो अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है, या उसका दावा नहीं कर सकते हम कि ऐसा होता है। पर इसमें क्या होता है, it is very easy to use. The adsorber is a standard whole blood cartridge and can be used with conventional dialysis and hemofiltration equipment as well as heart lung machines. जैसा हम डायलिसिस के मशीन्स में देखते हैं कि एक ओर से वो निकालते हैं ब्लड, उसको प्यूरिफाई करते हैं और फिर अंदर डालते हैं। कुछ साल पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक ट्रीटमेंट आया था, इन्वेंट हुआ था, उसका नाम प्रोसोर्बा कॉलम था। यही एक एडसॉर्बर का ही उसमें टेक्निक था कि जो कुछ इम्प्योरिटीज उनके हिसाब से ब्लड में है वो अगर ब्लड से निकालनी है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। उस मैकेनिज्म के हिसाब से वो जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे शरीर से निकाल लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर उसको प्यूरिफाई करके फिर अंदर डालते हैं। उसके ट्रीटमेंट के गोल से वो ज्यादा सिर्फ स्किन में ही यूज होता है ऐसा नहीं है। सेप्टिक शॉक जो है या कुछ उससे भी ऊपर जाके जो क्रिटिकल डिसीजेस है उसमें ये साइटोसॉर्ब थेरेपी यूज होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ हेमोडायनामिक्स विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कैटेकोलामाइन रिक्वायरमेंट्स। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्रूवमेंट ऑफ हीमोडायनामिक्स, हम रक्त की अगर दुष्टि होती है तो उसके लिए जो रक्त मोक्षण करते हैं उसका आधार भी, उसका बेसिस भी हीमोडायनामिक्स ही होता है। ये प्रोसेस जो है, ये इक्विपमेंट जो है वो ऐसा दिखता है। सो ये बात अन्य शास्त्र भी स्वीकारते हैं कि अगर रक्त की दुष्टि है तो उसको शुद्ध करने के लिए कोई तो प्रोसीजर यूज करनी चाहिए। पर this procedure is quite complicated. Procedure is quite complicated. What we can call it as cytosorb therapy. आयुर्वेद ने जो प्रोसीजर बताई है वो इसके हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है और सस्ती भी है, जिसको हम रक्त मोक्षण कहते हैं। उसमें सिरावेद आ सकता है, उसमें श्रृंग है, उसमें प्रच्छान है, उसमें जलौका है, उसमें अलाबु भी है। हम ये जानते हैं कि यकृत जो है वो रक्त का मूल स्थान होता है। यकृत प्लीहान्नौ च धमन्यः, ऐसा बोला है कि यकृत और प्लीहा ये रक्त मोक्षण रक्त धातु के मूल स्थान है। अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो रक्त व स्रोत दुष्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ रक्त कैसे होता है ये जो आयुर्वेद में बताया है। स खलु अप्योरसो यकृत प्लीहान्नौ प्राप्य रागम उपैति आप्यो अपि रसो रागम उपैति लोहितत्वम गच्छति। ये टीका है जो बोल्ड टाइप में लिखी है, वो टीका है। आप्यो अपि रसो, ये जो रस धातु है यकृत और प्लीहा को प्राप्त होके उसमें लोही तत्व आ जाता है या उसका रंजन हो जाता है और उसका रक्त बनता है। शरीरस्येन यकृत प्लीहस्थेन एव प्रसन्नेन प्रकृतिस्थेन, ये जो उसके ऊपर जो उसके आगे जो श्लोक है, रंजितास तेजसातु आपा शरीरस्थेन देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधेयते। रक्त किसको हम बोलते हैं उसके ऊपर भी यही टीका उन्होंने लिखी है। What again modern science says, in the fetal hemopiesis, principal organ of blood formation is liver. From the 5th week of gestation, from the mool, that is root, transformation, that is from yakrut, transformation takes place. Various products required for hemopiesis, with vitamin B12 or ferrous, foliate, etc., are transported from liver and spleen to the hemopoietic organs for hemopiesis. So liver is the regulatory site of blood formation and its functioning. So ये आधुनिक शास्त्र भी मानता है कि liver and blood are very closely related. ये जो सोर्स है, जो स्लाइड ये मैंने दिखाया उसका सोर्स भी मैंने नीचे लिखा है, एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ रक्त व स्रोतस। लीवर और स्प्लीन और जो अभी बताया मैंने ब्लड है उसका जो रिलेशन है उसमें वेसल्स विच एंटर और लीव द लीवर और स्प्लीन एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड लिम्फ और वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रक्त और लिम्फ टेक प्लेस आर रक्त व स्रोतस। स्रोतस किसको हम बोलते हैं, उसमें उत्पत्ति होती है, उसमें परिणमन होता है, एक्सक्रीशन का भी काम होता है। ये सब चीजों के लिए अगर वो हम रक्त व स्रोतस के बारे में देखते हैं तो उसमें लीवर और स्प्लीन जो है वो भाग लेते हैं। लिवर एंड स्प्लीन आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, डिटॉक्सिफाइजेस द ब्लड फ्रॉम द गट एंड ट्रांसफर्स इट in the whole body. Bile pigments formed in the liver are formed by
decomposition of red blood cells. So लीवर का रक्त के चिकित्सा के बारे में कुछ रेफरेंस है क्या? हेमाक्रोमेटोसिस ये एक ऐसा डिजीज है जो आयरन की बहुत ज्यादा शरीर में अगर मात्रा हो जाती है तो उससे हो जाता है, उसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। और ये जो हीमोक्रोमेटोसिस है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर characterized by excessive intestinal absorption of dietary iron resulting in pathological increase in total body iron, and humans like most animals have no means to excrete this iron. आयरन बढ़ तो जाता है पर उसको एक्सक्रीट करने का कोई तरीका अवेलेबल नहीं है, ऐसा आधुनिक शास्त्र मानता है। अभी कोविड-19 में भी एक थ्योरी सामने आई है, उसमें आयरन डिप्लेशन होता है, फ्री आयरन मॉलिक्यूल्स ज्यादा ब्लड में है, उसी की वजह से सब हो रहा है, ऐसा एक थ्योरी उसमें भी मानती है। सो उसका जो ट्रीटमेंट है, जो साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट आता है हीमोक्रोमेटोसिस का, उसमें क्या लिखा है आप खुद पढ़ सकते हो। हाई आयरन लेवल्स नेसेसिटेट अ फ्लेबोटॉमी यानी वेनेसेक्शन, सीरावेद। रेगुलर फ्लेबोटॉमीज आर परफॉर्म्ड, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद फ्लेबोटॉमीज उन्होंने एडवाइस की है, उससे ब्लड आयरन लेवल्स डिक्रीज हो जाती है, आयरन लेवल्स इवेंचुअली बिकम नॉर्मल, आयरन लेवल्स राइजेस। जब वो राइज हो जाती है उसके बाद फिर उसका जो साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने बताया, उसके बाद फिर उसका फ्लेबोटॉमी करना चाहिए या सीरावेद कहना चाहिए। सो एलोपैथी या मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि यकृत में अगर दृष्टि हो जाती है, एग्जाम्पल है हीमोक्रोमेटोसिस का, अगर यकृत में कुछ दृष्टि हो जाती है तो सीरावेद के बाद ये ठीक भी हो सकती है। एंड दैट इज द कंक्लूजन, thus we can prove the role of सीरावेद in skin disorders. सीरावेद का तो हो गया, व्हाट अबाउट जलौका या व्हाट अबाउट लीचेस? सो नाउ रोल ऑफ जलौकाचरण और लीच एप्लीकेशन इन स्किन डिसीजेस। जलौका का जो रेफरेंस है वो हमारे पुराने शास्त्रों में है। Among other things, he means Dhanvantari, holds a leech in one of his four hands. Shankham Chakram Jalaukam Dadatam Mritagatam, ऐसा हम प्रार्थना में बोलते हैं। According to an old Sanskrit work called Vishnu Dharmottar Puran, he is believed to be a handsome man, and in most of his depictions, he has four hands. One of them carries a pot of Amrit. The other three hold the Shankh, Jalauka and Chakra. जलौका इज नथिंग बट लीच। तो हमारा जो रेफरेंस है जलौका का वो इतना दूर तक जाता है जहां तक कोई अभी पहुंच भी नहीं पाया। बट अगेन व्हाट मॉडर्न साइंसेस सेज, एक बहुत बढ़िया आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर है नॉर्मन मिलर का, दैट वाज बीन पब्लिश्ड ऑन संडे 3 नवंबर 1996। द वर्म हैज रिटर्न्ड। द वर्म हैज रिटर्न वाज द नेम ऑफ दैट आर्टिकल। व्हाट ही हैज रिटन, the first reported medicinal use of leeches was by Nicator. Nicator was a Greek of Colophon in 2000 BC, but it was Galen actually who gave their use an early medicinal spin with his humoral theory. ये जो humoral theory है उसमें 4 humors है, black bile, yellow bile, blood and phlegm, which when out of balance, ये जो हम जो त्रिदोष में असंतुलन बोलते हैं वही theory है। When it is out of balance, result in disease. Leeches, by removing bad blood, restore the balance in the treatment of everything from polio to laryngitis. Extensive use leeches का उन्होंने भी बताया है। कितना यूज था? By the mid 1800s यानी 18th century, demand for leech treatment was so widespread that an estimated 30 million were shipped annually from the leech powerhouse of Germany. 30 million per year, कितना बहुत ज्यादा है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, बाइट मार्क ऑफ द मेडिसिनल लीच, हम बोलते हैं उसका वाई या उल्टा वाई शेप होता है, या वाई जो लेटर है अंग्रेज का उसका जैसा ये मार्क आ जाता है आफ्टर लीच एप्लीकेशन। नाउ वी कैन से दैट इट इज अ स्पिटिंग इमेज ऑफ द मर्सिडीज बेंज सिंबल। मर्सिडीज बेंज का अगर सिंबल आप आपके आंखों के सामने लाओ तो आपको पता चलता है कि दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ इट्स लीच मार्क। However, as modern concepts of medicine developed, the use of leeches was damned as quackery
and consigned to the footnotes of medical history. आज भी बहुत लोग जो है आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक बोलते हैं, उनके एंसेस्टर्स बहुत सालों से लीचेस का यूज वेरियस डिसीज में, स्पेशली स्किन डिसीजेस में करते आए हैं। या अभी ये 100 साल से 2 साल से ऐसा बोल रहे हैं कि वो फैक्ट्री है और इसलिए इट इज बीन कंसाइंड टू द फुटनोट्स ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री। एक्चुअली उसका रेफरेंस जो है वो बहुत साल से आता है। और ये जो लीच का जो यूज था इतना ज्यादा होने के लिए एक स्टोरी उसकी उन्होंने नॉर्मन मिलर ने लिखी है। वो स्टोरी ये कहती है, द केस दैट डिड मोस्ट टू ब्रिंग अबाउट द रेनेसेंस ऑफ दिस रिमार्केबल ब्लड सकर occurred in 1985 when a boy in Boston had his ear torn off by a dog. A delicate 12-hour operation to reattach it saw the Harvard Medical School team reconnect some of the ear's circulation, but it was not enough. उन्होंने सर्जरी करी उसकी, पर वो सर्जरी के बाद भी वो जो टॉर्न ईयर था वो ठीक नहीं हो पाया। ये 1985 का है, ज्यादा पुराना नहीं है। और उसके बाद बहुत सारी लीच एप्लीकेशंस उस जगह पे करी और उसके बाद उसका कान ठीक हो गया। इसके बाद ये आर्टिकल 1996 में नॉर्मन मिलर ने लिखा है। तो ये 100-200 साल ऐसे बीच में चले गए और आज ऐसी चीज है, फिर वेस्टर्न कंट्रीज लीचेस का यूज उनके ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। So what is the mode of action of जलौ का उच्चारण? The therapeutic benefits of the leech bite doesn't relate with the average 5 to 10 ml of bloodletting। जैसा हम बोलते हैं कि लीच के वो जो सक करती है ब्लड वो कितना होता है, तो सिर्फ 5 या 10 ml ज्यादा ज्यादा होता है। But during bite, but the continuous oozing of the blood for 10 hours and that reaches up to 150 ml। जो continuous oozing होता है for at least 10 hours, उससे 150 ml तक ब्लड बाहर जाता है और ये कारीगर होता है। The goal is to produce a minimally adequate venous outflow from the tissue. Not only it reduces congestion, but also it helps. It is true that continuous bleeding in the bite wound is not merely due to the anticoagulants, but other pharmacologically active substance may also play good role. ये भी क्या है, सिर्फ उसमें एक हिरोडिन जैसा कुछ है जो एंटी कोएगुलेंट है और उससे ये फर्क आता है, ऐसा नहीं है। लीच में जो एंजाइम्स रहते हैं वो बहुत सारे रहते हैं। हिरोडिन इट्स प्रोटियोलाइटिक एंड थ्रोम्बिन स्पेसिफिक इनहिबिटर, इट रिटार्ड्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का कोएगुलेशन रोकता है। बेल्ड्रिन जो रहता है वो प्लाज्मिन इनहिबिटर है, इट चेक्स डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड गुड इन केस ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में जो लीचेस का इफेक्ट है वो इस बेडलिन की वजह से आता है। इग्लिन क्या है, ये एक पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इलेट्स एंड काइमोट्रिप्सिन, इट इफेक्टिवली काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन या एंटी इन्फ्लेमेटरी हम यूज करते हैं। हिमेंटिन ये क्या है, ये भी एक एंटीकोएगुलेंट है। कोलेजनेज एंड अपायरेज, these are inhibitor of platelet aggregations. Then there are vasodilators, then there are antibiotics also. So leech जो सलाइवा है उसमें ये सब सब्सटेंसेस रहते हैं। इसके लिए हम जो इस वजह से लीच हम जो अप्लाई करते हैं उसके बाद हमको जो कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स है उसमें इफेक्ट आ जाता है। और जो रोल है लीच का उसमें प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो है, जो it reduced the edema associated with grafting, therefore improve the blood circulation and it causes more chances of graft acceptance। graft अगर accept नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लीचेस अगर यूज करें तो उसका अच्छा यूज हो जाता है। prevention of necrosis improves tissue perfusion, provide enough time for capillaries to grow, neogenesis is an added advantage। edema अगर आ जाता है तो leech provides immediate reduction of swelling by sucking blood and by the action of seeping due to hirodin। तो इस वजह से लीचेस का जो स्किन डिसीजेस है उसमें उपयोग हम कर सकते हैं या होता है। सो पायोजेनिक लेजन्स, हेमाटोमा, पेन्स ऑफ वेरिड एटियोलॉजी, वेरिकोज वेन्स, स्किन डिसऑर्डर्स, वेरिकोज वेन और या varicose ulcer, I will present one case of varicose ulcer also in the end. Buerger's disease, and researchers are on to find out anti-tumor activity of leech saliva। बहुत साल पहले मैंने एक सेमिनार पंचकर्म के ऊपर अटेंड किया था, शायद हड़प सर के कॉलेज में ही हुआ था।
तो बहुत से स्टॉलवर्ड लोग उस सेमिनार में आए थे, जगत जोशी सर भी थे, तो उनकी कही हुई ये बात मुझे अभी भी ध्यान में है। बहुत लोगों का ये मानना था कि लीचेस की वजह से एड्स का प्रादुर्भाव हो सकता है क्या, तो ये तो रिजेक्ट हुई है थियरी। मैं उसके डिटेल में अभी जाना नहीं चाहता, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट फॉर टुडे। पर उन्होंने ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कुछ कोलैबोरेट करके रिसर्च शुरू करा था, एंटीवायरस एक्टिविटीज कुछ लीचेस में है क्या, और वो बहुत देर तक वो रिसर्च चलता रहा, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ अच्छे आउटकम्स उस रिसर्च के आए हैं। तो लीचेस आर एंटीवायरल टू, ये एंटीवायरल एक्टिविटी भी उसमें है। तो लीचेस का जो रोल है, खास करके ब्लड डिसऑर्डर के बारे में हम क्या बोलते हैं, अग्रे स्रवती दुष्टाश्रम, जो हमारा ब्लड है उसमें पहले या हम सिरावेद करें या प्रच्छान करें या श्रृंग या अलाबू का यूज करें, अग्रे स्रवती दुष्टाश्रम, और उसके बाद सद्यो रागर उजाम क्षमा, ये जो राग है यानी जो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको कम करने के लिए रक्त मोक्षण बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और पहले जो स्त्रवता है वो दुष्ट रक्त ही होता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। और फिर उसको हंस जो रहता है, हंस पक्षी जो रहता है उसका उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जो जैसे नीरक क्षीर विवेक उसमें रहता है और उसमें से वो दूध और पानी अलग अलग करके वो सिर्फ दूध लेता है, वैसे ही जलों का जो है अगर वो अप्लाई हो जाती है तो वो सिर्फ दुष्ट रक्त जो होता है उसको ही सक करती है। तो दिस इज द यूज ऑफ Jalauka, and we have seen the references from modern sciences also how leech have its effects on blood disorders or skin disorders. So now I will come to some illustrations. जो कुछ केसेस है, जो समय है, as we are running short of time, मैंने सिर्फ दो ही केस, एक रक्तमोक्षण का और एक जलौका उच्चारण का, ये प्रेजेंटेशन में रखा है आपके लिए। दिस इज फर्स्ट केस। A 34 years old female presented with following symptoms and signs in the OPD of Department of Panchkarma. हमारे जो परशुराम हॉस्पिटल में एक 3-4 साल पहले की ये केस है, 34 साल की एक ये जो महिला है वो आई थी। She was diagnosed as स्क्लेरोडर्मा। मैंने पहले बताया था कि ये जो स्क्लेरोडर्मा जो वर्ड है वो आप ध्यान में रखें, अंत में मैं एक केस इसके ऊपर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये जो स्क्लेरोडर्मा है उसको क्रेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, ऑटो इम्यून टाइप ऑफ ये डिजीज है। उसमें क्या क्या कंप्लेंट्स रहते हैं, तो टाइटनेस ऑफ स्किन हो जाता है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, जेनाइटल ईचिंग हो जाता है, उसमें चेंज ऑफ शेप ऑफ फेस एंड फिंगर्स, जैसे वो जो हमारा कैल्शियम है या बोन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें फटीग रहता है, नोशिया एंड वोमिटिंग, डिस्निया एंड बर्निंग मिक्चुरेशन। वो एलोपैथी के जो प्रैक्टिशनर है उन्होंने डायग्नोस करके उसको ट्रीट किया था, उसको बोला था इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, 3 साल से उसको अलग अलग सिम्टम्स थे। वो हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आई थी, बाकायदा उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया था। क्या क्या ट्रीटमेंट उसमें दिया था, तो यमक स्नेहपान और विरेचन दिया था। यमक स्नेहपान और विरेचन का ये जो यहाँ पे उल्लेख मैं कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि गुणे आयुर्वेद का मेरा बहुत ज्यादा क्लोज का रिलेशन रहा। मेरा अंडर ग्रेजुएशन जो है वो गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर में हुआ है। वहाँ जो एक स्टॉलवर्ड ऑफ पंचकर्मा और स्टॉलवर्ड ऑफ आयुर्वेद जो था वो थे डॉक्टर प्रभाकर पवार। ही वॉज माई टीचर, ही वॉज माई गुरु। उन्होंने ये ट्रीटमेंट वहाँ इन्वेंट करी थी कि कोई भी पेशेंट आता है, या सोरियासिस का आता है या स्पॉन्डिलोसिस का आता है या प्रमेह का आता है या कुष्ठ का आता है, तो यही थेरेपी उन्होंने उसको दी थी। यमक स्नेह, यो स्नेह अलग अलग यूज करते हैं, उसमें घृत अलग यूज करते थे या तेल भी अलग यूज करते थे, पर विरेचन का ट्रीटमेंट उनका सेम होता था। यमक स्नेहपान करने के बाद उसको जब विरेचन देना है, इच्छा वेदी का ही विरेचन वो देते थे, और उसके पहले उसको हम सिरावित करते थे 50 ml तक, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट देते थे। और मेरे 6 महीने के मेरे हाउस पोस्ट के दौरान कम से कम 600 से 700 केसेस इस प्रकार की वहां देखी थी, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमने पाया था। तो यही ट्रीटमेंट मैंने इस पेशेंट में भी करा था, और अंत में तिक्तक्षीर बस्ती या इस सब के साथ भी हमने सीरावेद भी करा था। जब सीरावेद किया तो उस पेशेंट में हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा, तब तक उसको इम्प्रूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ था।
जो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट था वो क्या था, वो भी आपके सामने है। टाइटनेस ऑफ स्किन था, वो भी 20% उसका कम हो गया। डिसकलरेशन ऑफ स्किन था, वो भी 20% कम हो गया। जनरल ईचिंग भी उसका 20% कम हो गया। चेंज ऑफ शेप ऑफ फेस है, वो भी उसका कम हुआ। जो ये थोड़ा आश्चर्यकारक है, पर वो भी कम हुआ था। फटीग भी कम हुआ, वो तो 80% कम हुआ। नौशा वोमिटिंग भी कम हो गया। डिस्निया और बर्निंग मैक्चुरेशन भी कम हो गया। स्क्लेरोडर्मा एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको एलोपैथी में ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, पर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी डिजीज को हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देख सके और उसको ट्रीट कर सके तो कुछ ना कुछ हद तक हम उसको ट्रीट करते हैं। हर बार ट्रीटमेंट का गोल अलग रह सकता है, कभी हम क्योर कर सकते हैं, पर कभी हमको पेशेंट का क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो इस चीज के बारे में भी हमको ध्यान रखना पड़ता है ट्रीटमेंट करते समय। तो आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट एंड अप्रोच क्या था? इफ वी कंसिडर कुष्ठ व्याधि, एज पर सुश्रुता ही हैज मेंशन्ड उत्तरोत्तर धातु अनुप्रवेश। ये जो मैंने पहले बताया था कि पहले त्वचा के ऊपर कुष्ठ दिखाई देता है, उसके बाद वो इंटरनल जो उसके जो ऑर्गन है उसमें चला जाता है। Here, in case of scleroderma, we can resemble it with Kushta as starting with skin symptoms. It tends towards the bone symptoms in latter stage, like Kushta. In scleroderma, also osteolysis is the condition in latter stage. मैंने जो बताया था कि जो अस्थि है उसका क्षय होता है और उसको हम एस्टियोलाइसिस बोलते हैं। वो अंत के जैसा हम कुष्ठ में भी देखते हैं ना कि नाक गल जाता है पेशेंट का, वो भी ऑस्टियोलाइसिस की प्रोसेस हम इस पेशेंट में देख सकते हैं। तो हाउ टू कंसिडर दिस कंडीशन ऑन आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म? आयुर्वेद के जो नए जो विद्यार्थी है उसके लिए उनके लिए खास तौर से ये मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू कंसिडर दिस कंडीशन ऑन आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म। ट्राई टू एलोकेट द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस इन टर्म ऑफ दोष दुष्ट समूर्छना। कोई भी केस हमारे सामने आता है तो उसमें दोष और दुष्ट समूर्छना, दोष गति का उल्लेख क्यों किया गया है आयुर्वेद में? संचयम च प्रकोपम च प्रसन्नम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम सब भवेद विषय। उसमें ये बताया गया है या इसके परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया है अगर वो अगले स्टेज में चला जाता है तो उसकी चिकित्सा ज्यादा दुस्तर हो जाती है। अगर उसको हम पहले स्टेज में या पहले के स्टेज में उसको ट्रीट कर सके तो हम उसको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और कभी कभार अगर हमको उसका नाम उसको हम नाम नहीं दे सके, विकार नामा कुशलो न जिव्वियात कदाचन, फिर भी अगर उसका हम दोष दुष्ट समूर्छना ये जो है वो अगर हम जान सके तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। Diagnose the dosh which is pitta pradhan in this condition and try to understand धातु दुष्टि। पहले हमको दोष क्या है, रोग आरंभक दोष क्या है उसको जानना है, और उसको जानने के बाद दूष्य क्या है या धातु दुष्टि क्या है वो भी मैं फिर एक बार आपको बोलता हूँ। ये जो मेरे सामने टीचर्स है या मेरे सामने जो बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए ये मैं नहीं बता रहा हूँ। जो अभी स्टूडेंट फेज में है, वैसे हम सब लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स है, फिर भी अभी जो लौकिक अर्थ से जो स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि डायग्नोज द दोष which is pitta pradhan in this particular case and then try to understand dhatu drishti which is rakta and mouse. Environmental and psychiatric factors are also important. बहुत बार हमने देखा है कि सोरियासिस के केसेस हमारे पास आते हैं और उनमें जो रिलैप्सेस आते हैं या इरप्शंस बढ़ जाते हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल कॉजेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो साइकियाट्रिक फैक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, वन विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट। ये जो पेशेंट है उसको 1-2 महीने तक हमने कंटिन्यूस जटामांसी फांड का भी यूज किया था। तो साइकियाट्रिक कंडीशन जो है उसको भी अच्छी तरह से हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इफेक्ट है सीरावेद के पहले। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका हुआ था, पर ये चीज जरूर है कि वो डिस्चार्ज के समय जो पेशेंट था वो बहुत खुश था। She was very happy when she was discharged from our hospital. This earlier case was of Siraved Raktamokshan. Now I am presenting this case number 2. A 62 years old male presented with following symptoms. You can see in the adjacent table and signs in the OPD of Department of Panchakarma. ये patient admit नहीं हुआ था, इसको हमने OPD बेस के ऊपर ही ट्रीट किया था। The recurrent ulcer, discoloration of skin,
जेनाइटल इचिंग एंड ऑकेजनल बर्निंग। ये जो जेनाइटल इचिंग था वो व्याधि संकर उसको हम बोलते हैं, उसका वो अलग प्रॉब्लम था। वो वेरिकोज अल्सर, ये अगेन मॉडर्न डायग्नोसिस लेके हमारे पास आया था। वेरिकोज अल्सर क्या है ये भी जानना जरूरी है। वेरिकोज अल्सर इज अ सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक वेनस इनसफिशियंसी. It is responsible for about 70% of chronic ulcers of the lower limbs. The pathogenesis starts with dysfunction of venous valves causing venous hypertension, which stretches the veins resulting in ulcer formation. If not treated properly, the ulcer may get infected, leading to cellulitis or gangrene, and eventually may need amputation of the part of limb. ये जो पेशेंट था वो 62 इयर्स का था और एक रनाउंड आईटी कंपनी से वो रिटायर हुआ था। वो मुंबई का रहने वाला था। उसके क्लोज रिलेटिव चिपलून में रहते, उसके साथ वो आया था। उन्होंने बोला था ये वेरिकोज अल्सर मेरा कम होता है कुछ हद तक ट्रीटमेंट के बाद और फिर बढ़ जाता है, और अभी उसमें सर्जरी एडवाइस किया है। तो इसको हमने फ्रिक्वेंट जलों का अप्लाई किया और उसके बाद वो कंप्लीट क्योर हो गया। और कंप्लीट क्योर के बाद अभी 8-10 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई मेरी। अभी 2 साल से कुछ भी ट्रीटमेंट उनको नहीं चल रहा, ना शोधन ना शमन, कुछ भी, ना एलोपैथी ना आयुर्वेद, और ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। दीज आर local vitiated doshas are removed. Similarly, it facilitates fresh blood supply and promotes wound healing by formation of healthy newer tissues. ये हम इसके बारे में कह सकते हैं। Earlier I have already shown you some slides describing the mode of action of जलों का उच्चारण। पर अगर वेरिकोज अल्सर के बारे में हम स्पेसिफिक बोले तो it facilitates fresh blood supply and promotes wound healing by formation of healthy newer tissues. Here are the pictures. ये जो स्लाइड है वो इनिशियल स्टेज में उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय भी डिस्कलरेशन भी बहुत ज़्यादा था, पर ये बहुत पहले की स्लाइड ट्रीटमेंट फोटोग्राफ नहीं है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद कुछ 2-4 महीने के बाद हमने ये फोटो लिया था। जो पहले वाला फोटो अभी मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यही अपलोड किया। और एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट का ये जो फोटोग्राफ है ये क्लियर बताता है कि देयर इज नो एनी साइन ऑफ अल्सर और एनीथिंग। इडिमा भी बहुत उसका कम हुआ, डिस्कलरेशन भी नहीं के बराबर है। तो वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ जलों का उच्चारण as well as we can see the effect of Raktamokshan in various skin diseases. So again this is for my students, all students who are watching my presentation. ये जो सर विलियम ऑस्लर है वो बहुत ही बढ़िया इंसान था। उसने ये बोला है कि it is much simpler to buy books than to read them and easier to read them than to absorb their contents. तो स्टूडेंट्स या हम जो सब लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, सिर्फ बुक खरीद के उसको शेल्फ में या शेल्फ की शोभा नहीं बढ़ानी चाहिए, तो वो पढ़ने चाहिए और पढ़ने के बाद उसको हमने आत्मसात भी करना है। वी हैव टू एब्सॉर्ब द कंटेंट्स ऑफ द बुक आल्सो। अगर ये हम करते रहे तो हमको हमारा जो शास्त्र कहता है, मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि मैंने अभी तक जिंदगी में कभी भी एलोपैथी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिर्फ आयुर्वेद की ही चिकित्सा करता हूँ। जो मुझे जानते हैं वो ये चीज भी जानते हैं। पर अगर हमारी बात को आज के समय में हमको लोगों के सामने रखना है या हमारे स्टूडेंट्स के सामने रखना है और उनको आयुर्वेद की ओर लाना है, तो उनको प्रेजेंटेशन हमको ऐसा देना होगा जैसे उनको ये बात पता चल सके कि आयुर्वेद ने जो बोला है वही मॉडर्न साइंसेस ने भी बोला है और यही हमारे रेफरेंसेस है। So our science is our shastra is also have the great scientific basis. So that was my aim of the presentation. So what we learn in today's session: the common factors in various skin diseases, relationship between blood purification and skin diseases, role of जलों का उच्चारण or leech application in skin diseases, role of सीरावेद in skin diseases, illustrative explanation हमने देखा, और हमने कुछ नए मेथड्स जो है सम न्यू मेथड्स और टेक्निक्स लाइक साइटोसॉर्ब थेरेपी, ये भी हमने आज नया कुछ जाना है। तो इतना ही मैं प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।